since God can't be there everywhere, so he made mothers. Krishna ji appeared in front of him and he said, look back. And he looked back at the sand. बोला वो footsteps दिख रहे हैं? बोला हाँ, वो तो मेरे footsteps हैं. I walked in here. वो तो तेरे नहीं है, मेरे हैं. I was carrying you in my arms. Same if I talk about Big Boss. Last 2018 से post गंदी बात, almost every year they call me for the main and the OTT. But Telugu people are like, fine, this is what we want. I said, मुझे तेलुगु मतलब थोड़ी थोड़ी आती, कुंचुम कुंचुम माట్లాడుతున్నాను. Oprah Winfrey had said this once. She said, there is a concept called you believe in angels. Without looking at a horoscope, one should never ever make a name change. पहले उन्होंने आशा सैनी को चेंज करने की कोशिश की. He made it one word, assassini. I said, I cannot be called assassini. 24 घंटे में 1 सेकेंड तो शायद भगवान के पास होता होगा where he's वो रेडियो का स्टेशन जैसे ना, he tunes into you, your frequency. One thing I have to give you credit. आपने मुझे बोला था कि तुम्हारा राजयोग है, और मुझे उस टाइम किसी एस्ट्रोलॉजर ने, अब तक जहाँ भी मैं गई थी, किसी ने ये बोला नहीं था. When my mother was expecting me, तो वो एक प्ले सुन रही थी रेडियो पे, फादर मदर डॉटर, क्रिश्चियन फैमिली, एंड द डॉटर्स नेम इज़ फ्लोरा. और मम्मा को नाम इतना पसंद आया, शी सेड अगर मेरी डॉटर हुई तो उसका नाम फ्लोरा रखेंगे. क्योंकि आप चाहे नाम को अपने बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर से जोड़ दो, मतलब अलाइन कर दो, कनेक्ट कर दो, आपको ये नहीं पता कि आपने जिस ग्रह के साथ उस नंबर को एसोसिएट किया है, वो ग्रह आपके बर्थ चार्ट में, मून चार्ट में, D9 चार्ट में, D10 चार्ट में क्या रिजल्ट दे रहा है आपको. So he took out his father's picture and he said, I swear on my dad and I'm going to kill you tonight. And I can hear my mom's words, again soul contract अगर मैं समझूं, अगर कभी ऐसा हो बस भाग. अगर तुम्हारा नाम अमिताभ बच्चन भी है, जब तुम्हारा वक्त बुरा है, you have to go through it. So and when God does good to you, make sure you do more good to people, and it's not between you and them, it's between you and him. व्हाइट में आप जो मिलाओ वो व्हाइट वो रंग ले लेगा. ब्लैक कैन नॉट बी करप्टेड. हमारी शैडोज में अक्सर हम अपने बहुत सारे क्वालिटीज, बहुत सारे इमोशंस को स्टोर करते हैं. I had my personal God well-wisher strength. It has been my mother. I love astrology. Om Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane Pranatah Kleshanashaya Govindaya Namo Namah Govindaya Namo Namah Govindaya Namo Namah Govindaya Namo Namah. Then I remember that night, the last violent night of my life, and I know this person would have killed me that night. और बहुत मारपीट चल रही है. His father had just expired, so he took out his father's picture and he said, I swear on my dad and I'm going to kill you tonight. उतने moment में like ऐसा swear किया, and he has to turn around and just keep the picture on the bed. That's all he did. I remember everything going slow motion. Everything becoming quiet. इतना मार पीट रोना था, मेरे को कुछ याद नहीं है. Everything becoming quiet, slow motion, and I can hear my mom's words. Again, soul contract अगर मैं समझूं, अगर कभी ऐसा हो बस भाग, बस भाग. I can actually hear her. She's not even there. कि मेरे को इतना clearly मम्मा का आवाज़ सुनाई दे रहा है, बस भाग. And that's all I did. And when I ran, सड़क पे he caught me and we are fighting. और जैसे अगर आप और मैं एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, पीछे से एक बस आ रही है जो मुझे दिख रही है, ही कांट सी इट, राइट. और वो बस दूर से नहीं, मुझे जब वो पास आई तब मुझे दिखी, एंड आई पुश्ड हिम. आई सेट माई 1 foot इन ऑन द बस, एंड वो बस स्लो हुई थी, शायद देखने के लिए कि क्या चल रहा है इन द मिडल ऑफ द रोड, एंड दैट बस टुक ऑफ. और मैं बस में बैठी हूँ, मैं रो रही हूँ. अर्ली मॉर्निंग 5:30. एंड मैं बस में बैठी हूँ और मैं रो रही हूँ, एंड दैट कंडक्टर कम्स टू मी एंड सेज कि आपको कहाँ जाना है. तो मैंने बताया मेरे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं. तो बोले ये बस वहीं जा रही है. मैंने बोला भैया मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं चाहिए, वो तो नहीं आएगा. मैंने बोला नहीं, मेरे को आप जल्दी से पहुँचा दो. बोले कैन यू बिलीव इट,
what are the chances of that My God. happening? And ये तो मैं like hearing my mom's voice, वो sometimes when I go back and think about it, I'm like ये कैसे पॉसिबल, ये मैंने कभी किसी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ नहीं, डिस्क्रिप्शन नहीं देखा है, बट दिस इज समथिंग दैट हैपेंस. एंड एक और चीज़ थी कि आज़ादी, हम एक एक्सप्रेशन है ना, आज़ादी की फिल्में बनाते हैं, कैसे रोना आप एक्सप्रेस कर सकते हो, हंसना, हाँ यू कैन लाफ, हाउ डू यू एक्सप्रेस आज़ादी? आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट. But when I decided that I will never go back to this man again and that it is over, because उससे पहले भी जब झगड़े हुए थे, I would leave and go back because it is that kind of a toxic thing. तो जिस दिन मेरा माइंड मेकअप हो गया कि अब बस, अब नहीं होगा ये, I actually felt like a, पता है एक burden. It lifted. Like it happened like this कि suddenly मैंने बोला कि I can't go back to this person जो ये पूछ रहा है कि भाई आप कौन हो, तो there is nothing in this relationship, मैं नहीं जाने वाली वापस. I actually felt this, जो मैं कैसे, अगर मेरे को कभी एक्टिंग करनी हुई और ऐसी स्क्रिप्टों में बोल ही नहीं सकती, ये कैसे फील करवाऊँ ऑडियंस को. See, you're getting very overwhelmed. Yeah. I know you since such a long time, and I'm glad. I'll just tell a little small story for you, for the audience also. मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत खूबसूरत कहानी थी. When I was just discovering the energy of Krishna, and this is 2007-8, pretty much the time when you were going through that trauma of that phase. I had a low phase after Love in Nepal. The film didn't work on the box office. Yes. It put me back as a writer, and there was no work. And बच्चे पैदा हो गए थे 2004 में, twins, and बहुत difficult phase था, and so I was battling to survive in the industry, keep working, keep the head high. तब मैं I was connecting with Krishna ji a lot. तो मैंने एक बड़ी beautiful story पढ़ी, which really hit me and it stays with me. एक लड़का था जो बहुत भक्त था कृष्ण का. He used to pray to Lord Krishna every day, in and out. And one day Krishna came to him in his dream and he said, what do you want? The boy said, I want you to be with me always. And Krishna said, I promise you, I'll be with you always. The boy asked, in the bad times too? Well, in your worst of times, I'll be with you. Unfortunately, couple of years later, the boy went through a very difficult phase. बहुत मुश्किलें आई, बहुत तकलीफें हुई उसको. तो उसने सोचा मैं कृष्ण जी के पास जाके कंप्लेन करता हूँ कि इस फेज में जहाँ मैं इतनी मुसीबत से गुजर रहा हूँ, तुमने तो वादा किया था कि तुम मेरे साथ होगे, क्यों नहीं हो मेरे साथ? तो वो मंदिर बीच पे था, तो वो गया, बीच से चलते चलते सैंड से गुजरता हुआ और मंदिर पहुंचा, कृष्ण के मंदिर में, और अंदर जाके घंटी बजाई और बोला कि यू प्रॉमिस मी दैट यू ब्रोक योर प्रॉमिस, हाउ कैन गॉड ब्रेक अ प्रॉमिस? एंड मेरे रोंगटे खड़े होते हैं. कृष्ण जी अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही सेड लुक बैक, एंड ही लुक बैक एट द सैंड. बोला वो फुटस्टेप्स दिख रहे हैं? बोला हाँ, वो तो मेरे फुटस्टेप्स हैं, आई वॉक्ड इन हियर. वो तो तेरे नहीं है, मेरे हैं. आई वॉज कैरिंग यू इन माई आर्म्स, आई हैव बीन कैरिंग यू इन माई आर्म्स ऑलवेज. सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ें हमें भुगतनी होती है. But if that belief system, if that spiritual power is with you, Yes. and you feel that you are the one carrying yourself through a difficult phase and surviving it, Yes. it's not you. You are being carried. You are being carried by this force that you believe in, that you trust in. And I think that should never break. That trust should never break. That story has remained with me, has always remained with me, and I never forget it. And बावजूद उसके हम कभी कभी क्वेश्चन करते हैं, आ जाता है, इस ह्यूमन. पर जैसे ही मेरे मन में कभी सवाल आता है which is where I am supposed to question the existence of God, I always remember this story. And But you always wanted to be a writer? I always wanted to be a filmmaker. Writer was of course a part of it. मुझे इंडस्ट्री का पार्ट बनना था. मुझे इतना पता था कि शोले वगैरह ये सब फिल्में देख के I was always, खासकर बच्चन साहब की सारी फिल्में, दीवार, त्रिशूल, we grew up on those films. And लगता था कि यार कितनी कमाल की लाइंस होती हैं, कितने अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, कौन लिखता होगा,
तब इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी जितनी आज इंटरनेट ने अवेलेबल करा दी हमारे लिए, बट हम फिर भी आर्टिकल्स पढ़ते थे. सो देयर वाज लॉट ऑफ अवेयरनेस दैट देयर आर सेट ऑफ टेक्नीशियंस हु कम टुगेदर टू मेक अ फिल्म, एंड एक्टर ऑफ कोर्स इज द एसेंस ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स पुट टुगेदर ऑन स्क्रीन. तो मुझे बड़ा फैसिनेशन था कि जो हमने थोड़ा सा, एक्चुअली मुझे एक्टर बनना था. and you'd be so good at it. अरे गुड तो ठीक है, पर उस समय जैसा आपने कहा ना कि ओवरवेट पीपल को हमेशा एक स्ट्रेस होता है और बीइंग जज्ड, एंड सो आई वाज ऑलवेज ओवरवेट. आई स्टिल एम, यू कैन सी दैट, बट इससे ज्यादा था मैं अपने यंगर डेज में, कॉलेज डेज में. ह्यूमर बिकेम माई डिफेंस मैकेनिज्म, बट आई यूज्ड टू ऑलवेज फील बैड एंड अबाउट द वेट एंड हाउ आई लुक. तो एक्टर बनने का शौक था. मैंने भी किशोर नमित कपूर के यहाँ पे एक्टिंग का कोर्स किया था. ये पॉडकास्ट भी शुरू करने से पहले आई वाज ऑलवेज, आई स्टिल एम स्कैर्ड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल लाइक यू हु आर सो वंडरफुल, एंड इतने आप लोग इजीली पोर्ट्रे करते, यू आर सो टैलेंटेड. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ मैं ये. तो घबराहट होती थी. तो फिर सोचा कि आई शुड बी बिहाइंड द कैमरा, बिकॉज फ्रंट ऑफ कैमरा आने का शायद बिकॉज ऑफ वेट एंड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस आई डिडंट वांट टू बी देयर. तो मैं राइटिंग स्किल्स डेवलप कर रहा था. दैट आई विल बी अ फिल्म मेकर, आई विल बी द वन मेकिंग फिल्म्स एंड मेकिंग कंटेंट देयर. एंड that's where I realized that writing is a very important part of filmmaking, editing and writing. So I started with writing. Then Love in Nepal से पहले मैंने वादे राधे एक फिल्म थी 1993 में. I was the production assistant. Okay. That's where my journey began. उसके बाद मैंने I was assistant art director, assistant director, assistant production manager. दुनिया भर के सारे जगह में assist करके सारे departments ऑलमोस्ट मैंने काम किया. सो वहाँ से धीरे धीरे करते करते आई बिकेम एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर विद शोभना देसाई प्रोडक्शंस, विद निम्बस टेलीविजन. एंड देन मुझे 2002 में आई रोट डायलॉग्स फॉर अ फिल्म कॉल्ड कैसे कहूँ कि प्यार है. धर्म जी सनी साहब दे वर देयर. धर्म जी, वी जस्ट लॉस्ट हिम, फीलिंग वेरी सैड. माय फर्स्ट डायलॉग जो मैंने लिखा था ऑन पेपर वाज स्पोकन बाय धर्म जी. सो इट्स अ मेमोरी दैट इज वेरी स्पेशल टू मी. And then that was of course just dialogues, and my first independent film was Love in Nepal, the story, screenplay and dialogues. Because it didn't do well, then I got into a lot of soul questioning. Times were bad financially, in every possible way, and that's when I started actually doing astrology. 2007 से मैंने पढ़ना शुरू किया टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें मैंने पढ़नी शुरू की और वहां से लेके आज तक की जर्नी रही है. देन डेस्टिनी ने, किस्मत ने साथ दिया. काफी सारे टीवी शोज लिखे, वो भी नहीं चले. इवेंचुअली 2012 में आई रोट एक हसीना थी, द शो ऑन स्टार प्लस, which था. That really was the game changer. वहां से किस्मत बदली. That show became आज भी लोग उस शो का रेफरेंस देते हैं. It became one of the best shows on Star Plus, and we got a Best Show award also. उसके बाद से suddenly from a nobody I became a senior writer. अरे ये senior writer है. Nothing works like success. Is and touch wood, from that day I have not looked back. God has been kind. चलती रही गाड़ी अच्छी तरह से. I have been able to give a living to my family and take care of my responsibilities. So भगवान कृष्ण ने संभाल के रखा है. तो वो है. आपका भी जो सेकेंड फेज रहा लाइफ का, बहुत सक्सेसफुल विद स्त्री, एज यू सेड, इनसाइड एज हिट सीरीज अमेजोन पे, सिटी ऑफ ड्रीम्स ऑन हॉटस्टार, है ना. मेड इन इंडिया, ऑफ कोर्स यू स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ वेब सीरीज. इवन इन लॉकडाउन आई बिलीव, मतलब बहुत लोग परेशान थे, बट आप यू आर देयर ऑन सोशल मीडिया एवरीवेयर विद योर ऐप एंड ऑल, यस. सो अगेन आई एम कनेक्टिंग इट विद टू थिंग्स कि जो होना है ना वो होके रहेगा. एंड आप कितना मर्जी उसको ना बोल दो, टाल लो, इट विल हैपन व्हेन इट्स मेंट टू हैपन, बट गॉड विल काइंड ऑफ look after you. Exactly what you said, he will carry you in tough times. अगर मैं सोचूं ये वेब सीरीज़ का एक फेज, उसके बाद लॉकडाउन जब आया, लॉकडाउन से पहले एक्चुअली पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी, कुछ लोग थे जिन्होंने एप्स बना के दे रहे थे एक्टर्स को, एंड दे आस्क्ड मी एंड आई सेड नहीं मैं नहीं कर सकती, आई एम नॉट टैलेंटेड इनफ, आई कांट सिंग, आई कांट डांस, मैं क्या करूँगी, कैसे चलाऊँगी, नहीं होगा मुझसे. एंड लॉकडाउन हुआ. So first 2-3 months
सारा जितना कंटेंट था टीवी पे सब देख लिया, वेब सीरीज देख ली, मूवीज देख ली, क्या करें 24 घंटे निकालने. दे अप्रोच्ड मी अगेन. दिस टाइम आई सेड चलो देखो, बिकॉज करने को कुछ नहीं है, आई विल गिव इट अ ट्राई, बट आई डोंट प्रॉमिस यू. 1 महीना में ट्राई कर लूँगी, अगर मुझे नहीं समझ में आया आई विल एग्जिट, आई एम टेलिंग यू नाउ. सेड ओके एंड इट स्टार्टेड. थोड़ा कुछ दिन थे जो खराब भी गए, एंड आई यूज्ड टू क्राई कि ये क्या हो रहा है, मतलब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ एंड स्टिल इट्स नॉट हैपनिंग. एंड देन स्लोली, बिकॉज करने को कुछ नहीं था, सो आई रियलाइज कि ये एक ही एंटरटेनमेंट मेरे लिए है जहाँ मेरा दिमाग यूज़ हो रहा है. सो लेट मी गिव इट वन मूव. एंड क्या होता है ना, कई बार जब चीज़ें नहीं होती, लाइक द गुड डेज द बैड डेज, इट काइंड ऑफ ट्रिगर्स यू कि 1 महीना और ट्राई करते ना, शायद मतलब क्या ठीक, व्हाट कैन आई फिक्स टू मेक दिस बेटर. सो वो 2nd month में गया, 3rd month में गया, एंड देन इट पिक्ड अप एंड आई हैड द बेस्ट लॉकडाउन. आई वाज रियली बिजी इन द लॉकडाउन. लोग मुझे अगर शाम में कोई फ़ोन कर रहा है, इससे नहीं मैं बात नहीं कर सकती, मैं लाइव जाने वाली हूँ, आई एम गेटिंग रेडी, आई एम ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स. एंड सेम इफ आई टॉक अबाउट बिग बॉस, लास्ट 2018 से पोस्ट गंदी बात, ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे कॉल मी फॉर द मेन एंड द OTT. मेरा बहुत दिल है करने का, पर हर बार मैं बोलती हूँ कि नहीं यार मैं नहीं कर सकती, नॉट फॉर मी बिकॉज आई आस्क माई मॉम एंड डैड एंड दे आर लाइक देखो पीपल आर गोइंग टू ब्रिंग अप योर पास्ट एंड दे विल से थिंग्स, तुम नहीं ले पाओगे द वे दे नो मी, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम दे हैव सीन व्हाट हैपेंड टू मी, सो दे नो कि आई वोंट बी एबल टू हियर अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड आई यूज्ड टू बिलीव दैट कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगी. ये साल फर्स्ट ईयर हिंदी से जब फ़ोन आया, मैंने बोला नहीं करना है. जब नहीं एंड लास्ट ईयर ऑल्सो आई सेड नो, दिस टाइम ऑल्सो आई सेड नो. ना तो बोल ही रहे ना, लेट मी जस्ट सी कि इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं ये. एंड विद द माइंडसेट कि आई विल नॉट डू इट, आई वेंट फॉर द इंटरव्यू. दे आस्क्ड मी कि हाउ एग्रेसिव आर यू. तो क्योंकि मुझे करना नहीं था, तो आई वॉज ऑन अ वेरी डिफरेंट मूड ऑफ रिप्लाइंग. आई सेड पता है आप लोगों ने ये शो खराब कर दिया है. दिस यूज्ड टू बी अ पर्सनैलिटी शो. इफ यू सी द बिगिनिंग सीजन्स, यू मेड इट अ फाइटिंग शो. यू गाइज हैव स्पॉइल्ड द शो. मैं खूब सुना के आई, क्योंकि मेरे माइंड में था कि भाई मुझे नहीं करना है. And then Telugu, last year also they called, but I had just blatantly said no last time. This time I said जब हिंदी में इंटरव्यू दे दिया तो इनको भी दे देती हूँ, क्या जाता है मेरा. अगेन विद द माइंडसेट कि मैं नहीं करने वाली है. लास्ट मतलब ना ये मुझे फ़ोन करेंगे, बिकॉज माई नेचर दे विल अंडरस्टैंड कि मैं एग्रेसिव का क्या आंसर दे रही हूँ. बट तेलुगु पीपल आर लाइक फाइन, दिस इज व्हाट वी वांट. आई सेड मुझे तेलुगु मतलब थोड़ी आती, కొంచెం మాట్లాడుతున్నాను, పర్లేదు ఇంత మాట్లాడుతున్నారు, इतना बात कर रहे हो, इतना काफ़ी है. ठीक है भाई. सो एवरीथिंग जस्ट वर्कड एंड दैट वन विश दैट आई हैड कि बिग बॉस पे कभी जाएंगे. सेम थिंग हैपेंड विद कपिल शर्मा शो. ऑल माई लाइफ हम ये देखते थे. आई वाज डूइंग मूवीज, बेगम जान वगैरह किया, एंड वी यूज्ड टू थिंक कभी जाएंगे क्या, कभी इतने बड़े होंगे क्या. एंड देन व्हेन बेगम जान हैपेंड, वी गॉट अ कॉल फ्रॉम द PR टीम सेइंग कि ये कपिल शर्मा का शो हो रहा है. कोई We were like, my God, this is like a wish come true, because ये तो possible ही नहीं है. हम कब, when they would have never called us. So ऐसा छोटा जो है ना, wish come true, and which reminds me, एक बार I really look up to you because you followed your passion, which is of astrology. मैं बहुत पैशनेट हूँ, बट एस्ट्रोलॉजी पर मेरे को कहाँ से सीखूँ. आई आस्क्ड यू ऑल्सो मैं कहाँ जाऊँ, एंड यू सेड मैं सिखा दूँगा. इट्स नॉट दैट टफ, बट आई थिंक इट इज़ इंटरेस्ट ठीक है, बट याद भी बहुत कुछ रखना पड़ता है. एंड वन थिंग आई हैव टू गिव यू क्रेडिट. आपने मुझे बोला था कि तुम्हारा राजयोग है, और मुझे उस टाइम किसी एस्ट्रोलॉजर ने, अब तक जहाँ भी मैं गई थी, किसी ने ये बोला नहीं था. एंड दैट्स हैज स्टेड इन माई हेड. And I checked on ChatGPT. Okay, I said, do I have a Rajyog? Because किसी ने मुझे नहीं बोला है. And that's what ChatGPT said. I have a Rajyog, which is a different kind of a Rajyog, which only means कि every time I'm in trouble, it'll bring me up. It'll bring you up. That's the kind of Rajyog I have, not the other ones. But you're the only one who could actually tell me कि ऐसा है. और अभी भी मैं सोचती हूँ और क्या बोला था, और मेरे को पर ये लाइन जो है ना आपकी, क्योंकि मैंने कभी ये सुनी नहीं थी मेरे बारे में, तो ये इट स्टक विद मी.
And I really am so proud of you that you followed your passion. Dil se you followed, and that is why even your stories have been so different from the traditional serial. भी एक वो हम फिक्स हो गए कि सास बहू देवरानी जेठानी यही होगा, but yours have just been. Thank you for so much credit, and I must tell the audience here, please इनकी बात सुन लो. मैं चैट जीपीटी से पहले बता सकता हूँ आपको कि कौन सा योग है आपकी चार्ट में. That is true. That is absolutely true. राजयोग है आपका, एंड whenever a problem comes, you will keep rising. So आप जब प्रॉब्लम आए आप खुश हो जाओ कि ये मौका है मेरे लिए एक और लंबा छक्का मारने का. Catapult है ना? कैटापुल्ट है आपके लिए ये. But this also makes me believe कि again another story that I believe कि 24 घंटे में 1 सेकेंड तो शायद भगवान के पास होता होगा where he's वो रेडियो का स्टेशन जैसे ना he tunes into you your frequency. तो जब भी सोचो no matter how ridiculous, अच्छा सोचो, make a wish, keep making wishes through the day and keep thinking good things. Even अगर आपको आज लगता है कि ये possible नहीं है, just leave that wish. It'll sometimes God just makes it happen. Maybe later, maybe when you least expect it, maybe when you're thinking in your head, ये तो मैं नहीं कर रही अब हर बार ना बोलती हूँ, अब तो मैं नहीं करूँगी. उसी साल आप करके आते हो. नहीं, आपको आई एम श्योर वापस दोबारा they'll approach for Big Boss हिंदी. And आप जितना बोल दो फाइटिंग शो ये शो all of that, I still feel that people who have, despite all the chaos happening in the house, people who eventually become winners, and you can see all winners of the past seasons too. There has been a lot of grace that they have conducted themselves with. Yes. During the journey as a contestant and participant. तो वो आप में quality है to survive the all the drama that unfolds, which is I feel a lot of forced drama also happens. Yes. People have started believing कि मतलब बिग बॉस में है तो हम शोर मचाएंगे या झगड़ेंगे या जबरदस्ती मुद्दे उठाएंगे तो हम दिखेंगे. Yes. बट द फैक्ट इज दैट सोशल मीडिया जितना स्ट्रांग है बाहर, सोशल मीडिया ये चीज़ को कैच कर लेता है, गैदर कर लेता है. आप सारे देख लो पोस्ट जो एक्चुअली सोशल मीडिया पे आते हैं, सब बोलते हैं कि सर्टन अभी मेरा फेवरेट इस सीजन के गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे हैं. हाँ. Both of them, you see, they have conducted themselves with so much grace. Yes. झगड़े उन्होंने भी किए हैं, सेल्फिश वो भी होते हैं, विन सबको करना है. Correct. So there are those phases, but generally they have been nice people. Yes. And I think niceness is what should win, because Yes. then you lead by example. तो I'm sure आपको वापस ऑफर आएगा. And you must go. मैं तो वेट कर रहा हूँ मेरे अपॉर्चुनिटी का. मुझे बिग बॉस जाना है डेफिनेटली. पता है, sometimes I used to think it is like Big Boss is like God and this house is life. And same situation में आप 10 लोगों 15 लोगों को डालो, सबको ये अलग रिएक्ट करेगा. But again I feel that, and again it is about how you conduct yourself. ऐसा भी मैंने देखा है. Like I remember this one week we had where A team and B team were there. And my team decided कि they will nominate me. Okay. I said, but why? They said, no, switch करना है तो हम एक दूसरे इंसान को बचा लेंगे और आपको nomination में डालेंगे, because किसी को डालना है. Because of the language barrier, I was their favorite one to nominate. तो I said, normally मैं लड़ती, मैं शायद बोलती कि नहीं, how can you replace me? But वो जिस इंसान को replace कर रहे थे मुझसे, I liked her. She was kind to me. So मैंने बोला, for this person, आई डोंट माइंड, मैं नॉमिनेट हो जाऊंगी. और उसी वीक बिग बॉस ने एक टास्क रखा वे दे गिव, एक ट्री बनाया, उसमें एप्पल्स थे सबके नाम के, एंड यू टेक द एप्पल. तो उसमें मेरे में ब्लैक सीड था, किसी में रेड था और किसी में ब्लू. एवरीथिंग स्टूड फॉर अ मीनिंग बट दे डिडंट टेल अस देन. तो देन बिग बॉस सेड अगर आप अपना बीज बदलना चाहते हैं तो बदल लो. सो एवरीवन टोल्ड मी, यू नो, ये ब्लैक बीज है, मीन्स सड़ा हुआ है, सो चेंज इट. आई सेड बट व्हाट डज इट मीन? तो बोले वो नहीं पता, बट ये ब्लैक है मतलब सड़ा हुआ है. मैंने कहा नो, ब्लैक कैन बी ब्यूटिफुल ऑल्सो. इफ बिग बॉस इज लाइक गॉड, ही हैज सेंट दिस एप्पल विद माई नेम ऑन इट. इट हैज सम मीनिंग, रैंडम नहीं है. भगवान को भी पता है ना कि मेरी नेचर कैसी है, तो मेरी नेचर के अकॉर्डिंग मुझे एक सीड दिया. आई विल प्ले विद दिस. इट्स लाइक डीलिंग विद द कार्ड्स दैट यू राइट. सो एंड दैट बीच वो 3 लोगों के पास था, बाकी 2 लोग जो थे दे वेंट एंड एक्सचेंज्ड. सो एक लड़की को सेम मिला और एक का एक्सचेंज हो गया, अनदर गर्ल केम. दैट ब्लैक सीड स्टूड फॉर इम्यूनिटी.
एंड वी फॉट लाइक नोबडीज बिजनेस एंड आई डिडंट स्टैंड अ चांस. तो क्या हुआ, 3 लड़कियां हैं, एक बहुत स्ट्रांग है, एक स्ट्रांग है बट पतली सी है. इन दोनों का झगड़ा था. So the task was कि बॉल है, बॉल्स आपने like 8 times they will throw a ball in a court जैसा बनाया था, उसके अंदर they will throw the ball and you have to take the ball and come through a tunnel जिसके maximum balls होंगे. फिर there is a basketball जैसा, so you have to basket 3 balls. तो जब वो शुरू हुआ खींचातानी, I was scared of getting hurt. तो मैं दूर दूर से खींच रही हूँ and I'm saying sorry, I'm sorry, I'm sorry. They're like, दोनों लड़कियाँ मुझे बोलती, why are you saying sorry, just play the game. I say because I don't want to hurt you, right? और लग गई तो कहाँ क्या करेंगे. तो बोले just play the game, okay. तो because these two were stronger and एक दूसरे को उन्होंने जैसे बाल एक दूसरे की खींच रही है, स्ट्रैंगल हो रहा है, मैं और डर गई. मैंने कहा ये तो मुझसे नहीं होगा. तो उन दोनों के झगड़े में one of the girls decided कि अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ, शी विल हेल्प मी. सो आई हैड टेकन 1 बॉल खुद से. द नेक्स्ट 2 balls आई गॉट बिकॉज ऑफ हर. एंड जो सबसे स्ट्रांग थी, जिससे हम सब डरते थे, शी हैड 4 balls, आई हैड 3 balls एंड द अदर गर्ल हैड 1 ball. अब हम सेकेंड फेज पे आते हैं जहाँ हमने बास्केट करनी है. एंड द रूल इज यू हैव टू बास्केट 3 balls. और मेरे पास एग्जैक्ट 3 balls है, द अदर गर्ल हैज 4, जिसके साथ मेन कॉम्पिटिशन है. सो वी स्टार्टेड बास्केट. आई सेड मेरा तो एम ही नहीं है एंड दैट इज ट्रू. मैं अगर वो शूटिंग, वो मेले वाली शूटिंग भी होती ना, मेरा एम बहुत ही सड़ा हुआ है, मेरा एम कभी नहीं होता. एंड मैंने कहा खैर इम्यूनिटी है, लेट्स जस्ट एंजॉय दिस. नहीं होने वाला ये. एवरी टाइम आई टोल्ड माई सेल्फ नहीं होने वाला एंड आई एम इन अ सिचुएशन वेयर इज डू और डाई. वो हो गया है. एंड 1 ball went. I'm like, okay, second नहीं जाएगी. Second ball went. My God. And this girl, वो घबरा गई. So she was not playing to make herself win. She was playing to defeat me. Defeat you. So वो घबराहट में उसका लग जा ही नहीं रहा है. And मेरा 3rd ball went and I'm screaming because I'm like मेरा तो एम ही खराब है. ये कैसे हो गया. I got immunity and then I was thinking because I was good to another person जिसको मैंने बोला हाँ मुझे नॉमिनेट कर दो. एंड दिस इज अगेन समथिंग आई बिलीव कि ओफ्रा विनफ्री हैड सेड दिस वंस. शी सेड देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड you believe in angels. How does God talk to you? Through people. Through angels. Through people, through angels. And आप मेरे साथ अगर अच्छा कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि मुझे वो वापस आपसे अच्छा करना है तो ये इक्वेशन बराबर होगी. यू जस्ट हैव टू डू गुड बिकॉज योर अकाउंट बुक्स मेंटेन ऊपर कर रहा है जो अकाउंटेंट है. एंड इफ आई एम डूइंग गुड, somebody else will come and do good for me. And wo actually, it's a circle of angels that keeps moving. So, and when God does good to you, make sure you do more good to people. And it's not between you and them, it's between you and him. आपने अपने नाम में कई बार there has been a I think a numerological aspect to your name. आप कभी आशा सैनी, people in South, especially in South films, you were known as Asha Saini. I have been knowing you as Flora Saini, Flora with a single L, FL. पर बीच में you experiment with double L also, but बहुत pretty name. And then Mayuri also. तो ये name changes का सबसे पहले तो मैं अपने नाम के पीछे की कहानी बताती हूँ. When my mother was expecting me, तो वो एक प्ले सुन रही थी रेडियो पे, फादर मदर डॉटर, क्रिश्चियन फैमिली, एंड द डॉटर्स नेम इज फ्लोरा. और मम्मा को नाम इतना पसंद आया, शी सेड अगर मेरी डॉटर हुई तो उसका नाम फ्लोरा रखेंगे. एंड घर में व्हेन आई वाज बोर्न, माय नाना सेड नहीं ये क्या नाम है, बिंदिया रखते हैं, कुछ और रखते हैं, बट शी सेड नहीं, डॉटर मेरी है, नाम भी मैं ही चूज़ करूँगी एंड इट इज़ फ्लोरा. एंड आई वाज द ओनली फ्लोरा इन माय स्कूल. मेरे अलावा मैं एक और फ्लोरा को जानती हूँ, बस हम 2 ही हैं. आई बिलीव जब मेरा बीच में बुरा टाइम भी चल रहा था, एंड आई वेंट टू एस्ट्रोलॉजर्स, क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम. आई लव एस्ट्रोलॉजी, तो बिकॉज आई बिलीव इन द साइंस, मैं बहुत लोगों के पास गई. आशा सैनी एक्चुअली हैपेंड बिकॉज माई प्रोड्यूसर्स वेंट टू समबडी एल्स विदाउट आस्किंग मी माई डेट ऑफ बर्थ. माई कई बार होता है ना कि ये अल्फ़ाबेट है, आप नाम चूज़ कर लो, वो भी नहीं. उन्होंने अपने आप से मेरा नाम चेंज किया विदाउट नोइंग एनी डिटेल. एंड नेक्स्ट डे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि दे हैव टेकन समबडी कॉल्ड आशा सैनी. मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आपने सैनी नाम की किसी लड़की को लिया है और मैं नहीं हूँ. बोले नहीं, आज से आप ही आशा सैनी है. सो आशा सैनी तो हैपेंड for your first film? For my first film.
एंड दैट नेम देन स्टक बिकॉज वो पीआर उन्होंने काफ़ी किया, तो फिर मिस्टर ईवी सत्यनारायण सर वो चलने दो, लोगों को थोड़ा आइडिया है तुम कौन हो. दैट नेम वॉज ओके फॉर मी, बट जब वक्त बुरा आता है आप चाहते हो कि और चीज़ें अच्छी हों, सो आई आस्क्ड एंड पीपल सेड नहीं, चेंज योर नेम to Mayuri is the closest to goodness, so try that. I tried that. I don't think magic happened. Then I went to Mr. Jumani. I was told extra L डाल लो. पहले उन्होंने आशा सैनी को चेंज करने की कोशिश की. He made it one word, Assassini. I said I cannot be called Assassini, please. Then he said okay, फिर F के साथ double L डाल दो. वो भी मैंने करके देखा. And my mother kept saying कि अगर तुम्हारा नाम अमिताभ बच्चन भी है, जब तुम्हारा वक्त बुरा है यू हैव टू गो थ्रू इट. टाइम सही होगा तो वो नाम, स्पेलिंग्स, नथिंग विल मैटर, सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा. एंड योर नेम हैज़ माई वाइब्रेशंस. आई फॉट विद सो मेनी पीपल एंड तुम्हारा नाम रखा है तो फ्लोरा ही रखो, फ्लोरा ही रखो. एंड आई यूज्ड टू टेल हिम मम्मा आई लव माई नेम, बट समझो अगर कुछ अच्छा हो जाए तो क्या बुरा है, क्या बुरा है. बट ओनली टू लर्न दैट माई मदर वॉज राइट. वो टाइम की बात है. And I see you wear so many stones, and I know you also have an extra M yes. in your name. Yeah, so you very rightly said कि एक तो वक्त जब आता है तब आता है, और न्यूमरोलॉजी जो साइंस है ना वो हमेशा इफेक्टिव नहीं होती, ये बात भी सच है. और इसकी एक वजह है, क्योंकि जो सिर्फ न्यूमरोलॉजी करते हैं बिना ये जाने कि चार्ट क्या है, मतलब हॉरोस्कोप क्या है, वहाँ पे प्रॉब्लम कभी कभी आ सकती है. आई टेल यू हाउ. फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही पॉपुलर धारणा है हमारी इंडस्ट्री में कि नंबर 6 इज द नंबर ऑफ वीनस, और वीनस इज द प्लैनेट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि वीनस खूबसूरती है, वीनस आर्ट है, वीनस आर्टिस्टिक चीजें हैं, कलर्स हैं, ऑल दैट इज वीनस, द ब्यूटी इज वीनस. एंड हमारी इंडस्ट्री इज अबाउट ब्यूटी, जो दिखता है वो बिकता है, यू नो, खूबसूरती ऑन स्क्रीन हम एक्सपेक्ट करते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि शुक्र जो है, वीनस जो है, फिल्म इंडस्ट्री का प्रधान प्लैनेट है, द नंबर 1 प्लैनेट फॉर द इंडस्ट्री. एक्चुअली सारे प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट हैं, बट मर्क्यूरी एंड वीनस टेक प्रेसिडेंस ओवर अदर्स. और बहुत लोग कोशिश करते हैं कि हम नंबर 6 पे लैंड करें अपने नाम को लेके, नाम की कैलकुलेशन को लेके. द मोस्ट आइडियल थिंग ऑफ कोर्स इज मैचिंग इट विथ योर बर्थ डेट, योर ईदर द डे नंबर और द एंटायर एडिशन नंबर जो होता है, जिसको हम लाइफ पाथ नंबर कहते हैं. द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज लाइफ पाथ नंबर एंड अगर बर्थ नंबर, डे नंबर आपका मैच हो गया, आपके नाम के साथ अलाइन हो गया, दैट्स द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी. मैं नहीं मानता इस चीज को, क्योंकि लेट्स से माय नेम नंबर एड्स टू माय बर्थ नंबर एड्स टू 6 एंड माय नेम नंबर एड्स टू समथिंग व्हिच इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ विच, अ नंबर व्हिच इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ 6. तो क्या करेंगे थेरेपिस्ट या न्यूमरोलॉजिस्ट? कोशिश करेंगे मेरे नाम में एक एक्स्ट्रा एम, जैसे डाला है मैंने, एम डाला या कोई और डाल के, टू मेक द नंबर कंपैटिबल विथ माय बर्थ नंबर. एंड ऑल्सो इफ आई हैव चोजन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री का नंबर क्या है, हमारे केस में फिल्म इंडस्ट्री. पर अगर उन्होंने 6 बना भी दिया मेरा, और 6 मेरे बर्थ नंबर से मैच भी हो रहा है, मेरा नेम नंबर 6 है, बर्थ नंबर मेरा जो भी है, अगर वो मैच भी हो रहा है, और अभी 6 बन गया जो वीनस इस इंडस्ट्री का नंबर है. अगर मेरे हॉरोस्कोप में वीनस अच्छी जगह नहीं बैठा है इन द चार्ट, और मेरे लिए चैलेंज लाने वाला है, अगर मैंने नंबर 6 बना दिया और वीनस बन गया मैं, तो मैं चैलेंजेस को इनवाइट कर रहा हूं मेरी लाइफ में, एंड इट कैन गो रॉन्ग, हॉरिबली रॉन्ग. जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है मारक, ग्रह कहा जाता है. अब मारक नाम से ही पता चलता है कि ये मारेगा आपको, नॉट फिजिकली, इमोशनली, financially, in other ways. Word is a very strong word, मारक, so I wanted to clarify that. तो अगर वीनस मेरा मारक ग्रह है अगर मेरे चार्ट में, तो अब मैंने नाम मैच कर दिया वीनस से, नंबर 6 बन गया नाम के साथ अपने, इट विल बी अ डिजास्टर. सो विदाउट लुकिंग एट अ हॉरोस्कोप, वन शुड never ever make a name change, because you don't know कि जैसे ही आपने नाम चेंज किया, वाइब्रेशन चेंज की, वो किस नंबर पे लैंड करेगा, और उस नंबर के साथ जो एसोसिएटेड प्लैनेट है, जो ग्रह है, वो आपकी चार्ट में क्या फंक्शन दे रहा है आपको. इज इट सपोज टू ब्रिंग यू अ ब्लेसिंग और अ कर्स? इज इट सपोज टू ब्रिंग यू सक्सेस और चैलेंजेस?
एंड ऑल्सो देयर इज अ खाली बर्थ चार्ट नहीं होती, birth chart होती है, there's something called as Navamans chart, there's something called as D10 chart, which is called the Dashmans chart and the success chart for a career. Usually name change आदमी करता है काम के लिए कर रहा होता है. तो if you are making a name change for your career and that planet in a D10 chart, in the Dashmans chart, आपकी लग्न चार्ट में बहुत अच्छा है वो, वीनस कमाल का है प्लेस्ड, तो यू फील अरे मेरा नाम भी वीनस है, वीनस का नाम कर दिया मैंने नेम से अपने, वीनस अच्छा प्लेस्ड है, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, मेरे बर्थ डेट से भी मैच होता है, मेरे बर्थ नंबर से भी मैच होता है, लाइफ पाथ नंबर से भी मैच होता है. पर D10 चार्ट में वीनस नीच का हो गया या प्रॉब्लम हो गया उसमें, it will still bring a downfall for you. My God. So the calculation is something which one has to keep the birth chart in focus, the moon chart in focus, your D9 chart, your D10 chart. That person is a complete numerologist. ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आप जब नाम पे अराइव करते हो, that is the right name number. Because I remember जिनके पास मैं गई थी, they never saw my horoscope या ऐसा कुछ नहीं, सीधा So it will never work. It will never work. Sometimes it works, तो हम बोलते हैं कि अरे यार कमाल हो गया, but chances are that it may not work. क्योंकि आप चाहे नाम को अपने बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर से जोड़ दो, मतलब अलाइन कर दो, कनेक्ट कर दो, आपको ये नहीं पता कि आपने जिस ग्रह के साथ उस नंबर को एसोसिएट किया है, वो ग्रह आपके बर्थ चार्ट में, मून चार्ट में, D9 चार्ट में, D10 चार्ट में क्या रिजल्ट दे रहा है आपको. तो आपको सारी चीज कॉम्प्रिहेंसिवली कैलकुलेट करनी पड़ेगी. देन यू हैव टू अराइव एट द बेस्ट पॉसिबल नेम that this person can carry, because on all these 4-5 important charts, this planet is supposed to be at least neutral or positive and not negative anywhere. तो वो बैलेंस आउट करना पड़ता है. मैं जब करता हूँ किसी के लिए न्यूमरोलॉजी, आई कॉल दिस न्यूमरोस्कोप, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड हॉरोस्कोप. सो न्यूमरोस्कोप. सो टिल द टाइम यू सी, मैं किसी को कभी नेम चेंज सजेस्ट नहीं करता, जस्ट बेस्ड ऑन द बर्थ डेट. And about rings? About rings, I believe ये सारे planets की एनर्जी जो है ना हमारे अंदर है, सारे जितने 9 ग्रह हैं हमारे. Western astrology में of course there are other planets too, but I'm a follower of Vedic astrology. तो ये ग्रह की एनर्जीज हमारे अंदर है. जैसे सूर्य की एनर्जी आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, है ना. सन आते हैं, हम धूप महसूस करते हैं, उनकी लाइट महसूस करते हैं, सोर्स ऑफ आवर लाइफ, एंड फिर ढल जाते हैं. ढलते तो नहीं है, मतलब किसी और जगह पे रोशनी दे रहे होते हैं उस समय, और वो एक साइकिल सन का देखते हैं हम. मून आते हैं, मून सन से ही लाइट डिराइव करते हैं, हमें लाइट पहुंचाते हैं. सो दीज आर द टू ल्यूमिनरीज. बाकी जो ग्रह हैं वो भी अपनी, उनकी भी ऑरा है, उनकी भी एनर्जीज हैं, पर हमें दिखती नहीं है हमारे नेकेड आई से. पर ऐसा नहीं कि वो एनर्जी है नहीं, तो हम देख नहीं पाते उसको. तो जब सूर्य की एनर्जी महसूस कर लेते हैं, चंद्र की कर लेते हैं, बाकी 7 ग्रहों की भी एनर्जी है. Correct. जो हम तक पहुंचती है, और वो अंदर हमारे अंदर ही है. तो जब हम स्टोन्स पहनते हैं, वो ये भी अभी डिपेंड्स ऑन द चार्ट. अगेन द बर्थ चार्ट, अगेन द D9 चार्ट, अगेन द D10 चार्ट, अगेन द मून चार्ट, एंड सीइंग दैट व्हाट recommendation you're giving to the person, to the seeker. क्या वो planet सारे इन charts में इफेक्टिव रिजल्ट दे रहा है, कि एक में कम दे रहा है, एक में ज्यादा दे रहा है, आप बैलेंस आउट कर पा रहे हो. एक में बहुत अच्छा है, 2 में न्यूट्रल है, 1 में नेगेटिव है. तो यू विल फील कि अगर आप 4 चार्ट्स को कंसीडर कर रहे हो, कि एक में बहुत स्ट्रांग है, 2 में न्यूट्रल है, 1 में नेगेटिव है, सो यू स्टिल रिकमेंड दैट स्टोन, क्योंकि ओवरऑल इन 3 चार्ट्स एक में ही नेगेटिव है, बाकी 3 में मोर और लेस पॉजिटिव या न्यूट्रल है. व्हेन वी गिव दिस स्टोन्स, वी आर एनर्जाइजिंग दैट सर्टन planet या ग्रह की एनर्जी इन अस. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ लिब्रा एसेंडेंट. लिब्रा एसेंडेंट इज रूल्ड बाय वीनस. तो ये ओपल जो है, दिस इज फॉर वीनस. ये मैंने नीलम पहने हुए हैं, दिस इज फॉर सैटर्न. एंड दिस इज राहु का पहना हुआ स्टोन, एंड दिस इज मर्क्यूरी का स्टोन. सो there's a family, or Saturn, Venus, Mercury are friends. Rahu is a friend of Venus, is all right with Saturn also. With Mercury also he is friends. So this is a kind of a family, they're together. Okay. Now I can't wear conflicting stones together. For example, I can't wear a Jupiter with a Saturn stone.
पुखराज मतलब सूट, बृहस्पति एंड सैटर्न, वो शायद मैं पहन भी लूं एक बार न्यूट्रल है, बट आई कांट वेयर अ सन का स्टोन एंड अ सैटर्न का स्टोन बिकॉज दे आर नोन एनिमीज, दे डोंट लाइक ईच अदर्स एनर्जी. सो तो वो मैं अगेन व्हेन यू जज अ हॉरोस्कोप विद these 4-5 important divisional charts, आप तब अराइव करते हो एक डिसीजन पे कि आप कौन सा स्टोन किसी को रेकमेंड कर सकते हो, कौन सा प्लैनेट या कौन सी फैमिली ऑफ प्लैनेट्स इसके लिए वर्क कर रही है, इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए वर्क कर रही है. आप दशा लॉर्ड कौन है, अंतरदशा लॉर्ड कौन है, वो सारे फैक्टर्स, गोचर में अब क्या आ रहा है इसके, क्या वो बड़ी देर तक रहने वाला है. एक और मैंने सुना था जैसे अगर जुपिटर की महादशा शुरू होने वाली है और यू आर वेयरिंग अ येलो सफायर विच इज़ अ जुपिटर स्टोन, सो समटाइम्स दे से कि यू शुड एक्चुअली इफ इट्स अ बेनिफिशियरी प्लैनेट फॉर योर चार्ट डोंट वेयर इट, बिकॉज अगर वो अच्छा ला रहा है वो ऑलरेडी बेनिफिशियल है, पर जब आप उसको और पावर दे रहे हो, एवरी प्लैनेट ऑल्सो ब्रिंग्स इट्स शेयर ऑफ Challenges. हाँ, you might start overthinking, you might, which is it's supposed to give you more, तो वो मोर ही दे रहा है बट ओवर थिंकिंग दे सकता है या थोड़ा. ये अभी नो दिस इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव ऑल्सो. अब क्या है कि सबको लगता है जुपिटर एक्चुअली बहुत बेनिफिशियरी प्लैनेट है, ऐसा एक बिलीफ सिस्टम है, Correct. बट ओनली फॉर सर्टन लग्नाज. मतलब सर्टन लग्नाज मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे लग्न के लिए यानी कि तुला लग्न के लिए, लिब्रा के लिए जुपिटर इज नॉट अ वेरी गुड प्लैनेट. रियली या जुपिटर हर जगह अच्छा नहीं होता. सी जुपिटर क्या है, जुपिटर बृहस्पति है, देव गुरु है. हाँ. शुक्र क्या है, जो तुला लग्न के मालिक है शुक्र. शुक्र क्या है, शुक्र असुरों के गुरु थे, शुक्राचार्य. सो दोनों गुरु हैं, पर शुक्र असुरिक कम्युनिटी के गुरु थे. करेक्ट. और बृहस्पति देवों के थे. सो वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया. देव और असुर हमेशा से देवर इन बैटल एंड देवर कॉन्फ्लिक्टिंग. आज अगर हम बात करें कि भाई आज तब तो असुर थे, देवता थे, आज कहां पर है असुर. असुरिक क्वालिटीज हमारे अंदर की जो मटेरियल इंस्टिंक्ट्स हैं वो असुरिक क्वालिटी है. उसी को पाने के लिए हम कभी कभी गलतियां करते हैं, isn't it? सक्सेस के लिए, मटेरियल चीजों के लिए. तो हमारी इच्छाएं जो हैं वो एक्चुअली असुरिक है. तो उस कॉन्सेप्ट को इस तरह से, इस लेंस से देखना है हमें. अब शुक्राचार्य गुरु बोलते हैं सब कुछ त्याग दो, है ना. द्रोणाचार्य सब कुछ त्याग के एक आश्रम में खुश थे वो. तो बृहस्पति आपको विजडम देता है, नॉलेज देता है, फिलॉसफी देता है, स्ट्रैटेजी देता है. द्रोणाचार्य अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट थे. शुक्र आपको कंफर्ट्स देता है, शुक्र आपको फैसिनेशन फॉर आर्ट्स देता है, यू नो. शुक्र आपको सेंसिटिव बनाता है टुवर्ड्स आर्ट्स, इमोशंस हैं. आप और उस इमोशन में बह के हम कभी कभी मिस्टेक्स कर लेते हैं. गुरु हमेशा स्टॉइक रहते हैं, दे आर स्ट्रिक्ट पीपल, यू नो. दे हैव दिस विजडम, दे हैव दिस ऑरा. वो कम बोलेंगे आपसे. गुरु जब बोलता है वो कम बोलते हैं जब आपको देना होता है, unless they're in a motivational speech or something, but otherwise they're very restrained. People with Venus talk a lot. Look at me, I'm talking so much. So अब मैं लग्न, तुला लग्न वाले को या जो लिब्रा एसेंडेंट है उसको अगर मैं बोल दूंगा जुपिटर पहन लो, it will be conflicting energy. So you should not wear it. People of Taurus, people of Libra, they should not wear गुरु का stone. Not ideal. गुरु की एक और क्वालिटी है कि गुरु जिस घर में स्थित होता है उस घर को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता. उस घर में चाहे आपके लिए बेनिफिशियरी हो, उसकी दृष्टि जब पड़ रही होती है ना, वो उन घरों को संवारता है. और गुरु की 3 दृष्टियां हैं बृहस्पति की. अब जहां बैठे हैं वहां से 5वें घर को देखेंगे, 9वें घर को देखेंगे, 5वें 7वें और 9वें घर को देखेंगे वहां से. क्यों? ये भी कॉन्सेप्ट आप बहुत खूबसूरत है. गुरु जिस तरह रहते हैं गुरु, वो बॉदर नहीं करते हैं. थोड़ा ज्यादा खुश थे अपनी कुटिया में, अपनी छोटी सी लाइफ के साथ. उन्होंने कभी मांगा नहीं कि मुझे महल चाहिए या मुझे ये चाहिए. उनकी दृष्टि में ब्लेसिंग्स होती हैं जिन्हें देखते हैं प्यार से वो. सो अब दृष्टि जो है वो मेरे लिए भी उतना ही इफेक्ट देगी. मतलब चाहे तुला लग्नों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए गुरु इज नॉट सच अ ग्रेट प्लैनेट, बट दृष्टि में फिर भी मुझे वो संवारेंगे. मेरी दृष्टि जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ेगी, ही विल हेल्प दोज हाउसेस एक्सपैंड, ही विल हेल्प दोज हाउसेस बिकम ब्यूटिफुल. मेरे लग्न में गुरु बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो वहां से दृष्टि पड़ती है 5वें घर में, मतलब मेरे बच्चों के घर में. सो आई हैव बीन ब्लेस्ड विद वंडरफुल ट्विंस. 7वें घर में विच इज द हाउस ऑफ कंपेनियन. So I have wonderful companion Janvi. She's
शी इज़ बीन द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी। और मेरे 9वें घर में जो मेरा भाग्य स्थान है, तो मेरे भाग्य को कहीं ना कहीं उसने, गुरु ने आगे बढ़ाता गया है, सर्वाइव कराता गया है। मैंने कहा गुरु इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, विजडम। तो मुझे आज भी मैं सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ। आई एम स्टिल स्टडिंग, आई स्टिल डू वर्कशॉप्स, आई स्टिल कीप लर्निंग। सो वो इच्छा मेरे अंदर रखी है उसने। हेल्थ को मेरे थोड़ा हार्म कर दिया उसने, क्योंकि पहले घर में बैठा है। सो मैंने कहा गुरु तुला लग्न के लिए इज़ नॉट द बेस्ट प्लैनेट कंप्लीटली मेरी लाइफ में। बट वो भी मैं ब्लेसिंग मानता हूँ। जो है, मैंने हेल्थ इश्यूज आए, उससे भी कुछ चीज़ें सीखी। आई बिकेम अ मोर वाइजर पर्सन मे बी। सो जो है प्रसाद है, प्रसाद आपको एक्सेप्ट करना चाहिए विद ग्रेस, एंड दैट्स व्हाट आई डू। सो आई थैंक माई गुरु, आई थैंक ऑल माई नवग्रहस फॉर बीइंग वेरेवर दे आर इन माई चार्ट। एंड जैसा मैंने कहा, आपको पहले कहा था कि ये नवग्रह जो है विष्णु के अवतार हैं, माँ दुर्गा के अवतार हैं। तो कोई ना कोई लेसन लेके आते हैं आपको इवॉल्व करने के लिए, आपके सोल को मेच्योर करने के लिए। तो वो आए हैं। ये सारे ग्रह विष्णु के महाअवतार, माँ दुर्गा के अवतार, उन सबको नमन। सो दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ, एंड दैट्स हाउ आई अप्रोच एस्ट्रोलॉजी। And you have to change the stones after. No, I have been wearing these stones for years and years. दो ऑफ कोर्स मेरी दशा अब तक चेंज नहीं हुई है, पर मैं आगे भी जब दशा चेंज होगी मेरी 2027-28 में एक्सपेक्टेड है। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस स्टोन्स बिकॉज आई फील द पार्ट ऑफ मी नाउ। आई टॉक टू देम, आई जस्ट फील दैट दे आर my support system. Before meetings I just hold them at times and just speak to them, and I just tell them be with me, and they have always answered me positively. So I feel these are, और ये राहु का स्टोन है, बहुत पावरफुल प्लैनेट है राहु, खासकर आज कलयुग में। और कुछ देर पहले आप कलर्स की बात कर रहे थे, ये ना कि ब्लैक कलर की बात की, कि आपको वो एप्पल में ब्लैक सीड्स आ गए थे एंड यू वांटेड टू गो विद दैट सीड ओनली। वो टॉपिक मेरे माइंड में तब आया था और चला गया, बट आई रिमेम्बर इट अगेन नाउ बातों बातों में। आई थिंक ब्लैक इज द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल कलर। सब कहते हैं वाइट, ऑफ कोर्स वाइट इज प्योर, ऑल ऑफ दैट, बट वाइट कैन बी करप्टेड वेरी इजीली। आप उसमें ऑरेंज डालो तो वो अलग बन जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। वो वाइट में आप जो मिलाओ वो वाइट वो रंग ले लेगा। ब्लैक कैन नॉट बी करप्टेड, ब्लैक जो है वो है। सो ये मेरा है। लॉट ऑफ पीपल डोंट अग्री विथ मी, बट आई फील दैट ब्लैक इज द मोस्ट ब्यूटिफुल कलर बिकॉज और हमारी शैडो ब्लैक है, है ना। और हमारी शैडोज में अक्सर हम अपने बहुत सारे क्वालिटीज, बहुत सारे इमोशंस को स्टोर करते हैं जो हम दुनिया से छुपाते हैं। जैसे आप कह रहे थे कि आप यू वर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ व्हेन यू वर ओवरवेट, you felt lot of low on confidence, your insecurity, ये सब हम shadow से push कर देते हैं अपने, because we don't want to face it. Yes. We want to run away from it. But the fact is that we are incomplete without it. Yes. Those are the emotions that complete us, and that is black. So to me, black color, shadow is something that I would like to embrace always, because हमारे सारे actual जो hidden talent है हमारा ना, हमारा actual potential जो है वो उस ब्लैक में है, उस शैडो में है। It was that insecurity that you felt that made you what you are today. Correct. It was that feeling of being judged, feeling of being insulted, that you wanted to fight it back. So it was that negative emotion that you went through, or the negative energy that you experienced at that point in time, that made you a successful person today. True. That you are so today you have transformed. You are an example for so many people. You are so gorgeous. So वो जब तक नहीं हो, वो लड़की ने अगर वो फ्लोरा ने वो महसूस नहीं किया होता, आज हमारे सामने ये रिजल्ट नहीं होता। True. तो वो आपका शैडो है। तो उस ब्लैक को, शैडो को एम्ब्रेस करना इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग आई फील, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर अंश। So true. Really, this is the best take. That when there's something I'm going to keep my mind in this fact that white can be corrupted and black stays black. Now before we end, आपसे एक इशू पे जरूर बात करनी है, एक इंटरेस्टिंग मुद्दा है। I have always seen आंटी with you very protective. सारी माएँ होती हैं प्रोटेक्टिव अपने बच्चों को लेके, they are all very concerned and
all. माँ शब्द ही इतना खूबसूरत है. The universe exists because of a mother. You know, हमारी माँ शक्ति की वजह से. थोड़ा उसके बारे में बताइए. How it has impacted you, because I can see visibly how amazing you are as a team. Your auntie and you. So I think what they say na कि since God can't be there everywhere, so He made mothers. In my case, I believe that's true, because every time I've been down in the dumps, who has spoken to me? There's one person जिनके साथ मैं शेयर कर पाई हूँ, और कहीं कभी नहीं भी शेयर किया है तो she can read me like a book. मैं आपको थोड़े examples बताती हूँ. There was this one time I had liked someone. मैं उनको घर लेके आई, because I make it a point कि my mother should meet whoever I like. And my mom met this guy for the first time and she says, तो मम्मा को अगर कोई पसंद नहीं है ना, it's in your face, तो वो पानी भी ला के देंगी तो थोड़ा हाँ भाई straight forward तरीके से. And she said the minute he left, she said, I don't want to see this person in this house again. I said, you don't even know him. आपने बात भी नहीं की, ऐसे कैसे हो सकता है? She said, मैं आंखें देख के बता सकती हूँ, this person is not the one for you, and no. I said, you don't know anything, ठीक है? आपको without talking, without knowing, how can you this and that? And she was right. Not just with me, even some of my friends. There was another friend of mine. She said, Auntie, मैं शादी करने वाली हूँ. She introduced एक फिल्म का वो था, and she said, Auntie, this is the guy, because shoot पे you know, actors talk, mama होते हैं तो they speak. So my mom said, congratulations, पर तेरी शादी इससे नहीं होगी. And I'm telling my mama, आपका दिमाग खराब है. How can you say? आप मुझे बोल सकते हो, but this is वो तो शादी करने वाली है. How can she said नहीं, मेरा ऐसा feeling. And trust me, they were almost about to get married. It didn't happen. And she married her first love, which is even better. And she's happily married now 8 years to someone who was not in the picture that time, but he came back. So that, and बहुत सारी चीज़ें, like even after I came out, मैं एक word मैंने सुना था कि therapy, go for counseling. I told my mom, I think I should go for counseling. She said, shut up, you tell me what you're feeling. I will tell you what the counselor will tell, which I feel कि नहीं, you should go to a counselor, because they know how to medically get you out of that situation. So, but the things she told me have stayed with me. Really, I think if there's one person, मैं शायद अपने आप से यहाँ तक नहीं पहुँच पाती. I had my personal God, well-wisher, strength. It has been my mother. Dad है, but dad is fine with तुम जो decide करो. She is the one who pushes you. Sometimes I get irritated. I'm like, ये क्या है, क्या बकवास है? But that's the beauty of a relationship. We fight, but we love each other. We're inseparable. I always tell her, you're my other, like I'm married to my mom. It's literally like that. And she has a very strong sixth sense. That is something I wish I can get from her, because I still take people on face value, but this one can read people, and especially जब मेरी बात होती है. Even the night that I told you about, मैं इधर उनकी आवाज़ सुन पा रही हूँ, एंड एट होम शी कुड नॉट स्लीप. शी सेड मेरे को अनईजीनेस, जैसे हार्ट अटैक हो रहा है, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा था. एंड आई टेल यू, वी हैड 4 dogs at one point of time, and then फिर 2 बचे थे, and the 2 were very very close to my mother. So and they were in Calcutta. We started shooting. So जो Alsatian girl थी, in the night when we were in shoot में थे हम, and mama could just feel the dog on my mother's lap. Even though Gypsy was not there, she said, वो ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है. She called up my dad. पापा से नहीं नहीं सब ठीक है, वो थोड़ी सी. Then she called up the house help कि वो कैसी है. बोले नहीं, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल लेके गए थे, ठीक है. She saying ठीक ठीक बताओ क्या बात है, because पापा is not telling us, because we काम पे हैं तो डिस्टर्ब नहीं हो. So Gypsy was unwell and she passed away. एक दिन हो गया था, they were not telling us. And mama said I could just feel her and not sleep. So my mom has a very even strong sense with animals, more than like the other dog that we had. They used to talk. And mama used to say कि ये या तो मेरा बेटा रह चुका है या कुछ तो है. Surely is a blessing, and I'm very happy that she's got a sixth sense and does not like people at times, and she likes me. So I'm very happy about that. So auntie ji, namaste. Thank you.
missing you. I'd like to tell young girls कि जब आपके पेरेंट्स मना करें किसी भी बात के लिए 2 मिनट रुक के सोचना, स्पेशली रिलेशनशिप्स एंड यू नो मैरिजेस. आई एम नॉट सेइंग कि हर बार, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं अरेंज मैरिज वाला सीन भी होता है. आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट व्हेन योर पेरेंट्स से नो फॉर समथिंग, no matter how much you love someone or whatever, think 2 मिनट रुक के सोचो, बिकॉज ये लोग हैं जो आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे. एंड tomorrow when you're in trouble, only people who will stand by you are It's a family, it's your parents. Now, on this note, on this wonderful message, I'm sure your audience has heard you and seen your experience, lived your experience, and hopefully it will help someone. तो हम अपने we are coming to the end of our episode here, this conversation, such a beautiful conversation. I wish we could have continued. We will continue our conversations Yes, beyond the camera absolutely. now. तो करते ही रहेंगे. But so grateful. Thank you so much. Thank you. Honor, privilege to have you on the show, Flora, and talk about such amazing things, amazing insights. Your journey we have lived through from a spiritual lens. I hope भगवान कृष्ण आपके साथ हमेशा रहे. जाने से पहले एक बार हमारी ऑडियंस को if you would like to last words and you know tell them to like, share, subscribe. Oh, yes, बोलना yes. बहुत जरूरी है भाई. वो आपकी बात सुनेंगे, मेरी नहीं सुनते. Hi guys, so I had an amazing time talking to my favorite person on Veda Speaks. The Veda Speak. The Veda Speak. And if you like this video, please do like, subscribe, share the channel and the video as much as you can. And I hope आज हमने जितनी भी बातें की, you get to कुछ आपके जो मिसकंसेप्शंस जो मेरे भी थे लाइफ के बारे में, कुछ जो मैजिक हम दोनों ने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, वो आप भी अपनी लाइफ में इफ़ यू डीलिंग विद एनीथिंग, आई होप 1% भी अगर आपको कुछ भी लाइफ चेंजिंग इसमें से मिले, आवर जॉब विल बी डन. वील फील वेरी वेरी हैप्पी एंड बिलीव दैट द यूनिवर्स इज़ योर फ्रेंड एंड इट इज़ ब्यूटिफुल एंड सबके देयर इज समबडी वॉचिंग ओवर us all the time, so do good, be good and leave the rest to him. एंड हमेशा जैसे मैं वैदिक तरीके से आपको गुड बाय कहता हूँ, नमः सर्वेभ्यः. हमारे यज्ञ का हिस्सा बनते रहिए. थैंक यू सो मच.